today, I would love to introduce you to not just anyone, but Nazia Ijaz. She's a visual artist and a fashion designer और वो based है in Karachi, born in Lahore, जहाँ पे उन्होंने National College of Art attend किया था before going to London for her masters in visual arts as well. And अगर आप देखें तो उन्होंने अपनी degree acquire ही visual arts and creative practice में की है from the University of South Asia. She's been working as a printmaker, as a painter, as a teacher in UK, Australia, Pakistan और अब उनकी हो रही है solo exhibition और इस सोलो एग्जीबिशन का नाम है बॉर्डरलैंड्स जो कि ओपन होएगी ट्यूसडे 28 अक्टूबर को और ये होएगी 4 बजे से लेकर 7 बजे तक एट कैनवस गैलरी जो कि क्लिफ्टन कराची में है और हम इसके अंदर क्या एक्सप्लोर करेंगे द ह्यूमन स्पिरिट और द इंट्रिकेट रिलेशनशिप्स ऑफ किस तरीके से लैंडस्केप चेंज हो रहा है हमारी ज़िंदगियों का आई लव टू टेल यू मोर अबाउट इट बट लेट्स जस्ट स्पीक टू हर टू नाजिया herself. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो नाजिया. वालेकुम सलाम. इट्स सच अ प्लेजर टू हैव यू. आपके आने से पहले भी इतना हाइप था. And you know, even when you walked in, so many people were telling me that, oh, look at this graceful woman. So it's a pleasure. Thank you. I would like to take credit, but I think ये मुझे मेरी माँ से विरसे में मिला. The genes. So I cannot take too much. It's the good genes and the beautiful, you know, necklace you're wearing as well. Is that your mom's too? जी. खास तौर पे जब मेरा काम लगता है कहीं पर, क्योंकि वो नहीं है शायद. So I always wear her sarees and her jewelry. I think at every opening of mine I've done that. Wow. So that's a part of her, right? Yes, that you carry with you. When I was young, और अभी भी जब मैं बाहर रहती थी, because I lived in Australia, होता क्या है, you would go to an art gallery, और भरी होती थी लोगों से, और आप पूछते थे कि आर्टिस्ट कहाँ है, और आपको आर्टिस्ट कहीं पीछे कोने में नजर आता था, थोड़े गंदे कपड़े, थोड़ा quiet and sort of introspective. और या फिर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा देसी जो होते चांदी वांदी. And I felt that this is I'm being prescribed to wear this. कि आप ऐसे कपड़े पहनेंगे तो आप बहुत आर्टी हैं. और मैं शुरू दिन से I dress up. I love it. Yeah, I think having putting up a show, it's a celebration. Of course. It's a celebration of the work that you've done. इतने अरसे से आप काम कर रहे होते हैं. Of course. और आप उसको And it's a celebration of who you are in your journey in life as well. I would be lying if I dress down for that. I would be lying about the authenticity of who I am. Of who you are. And I love that because I think that reflects in your art and in the fact that आप कपड़े भी करती हैं, right? And आप fashion भी करती हैं. That was the later addition in my life, but yes, मैं वो भी करती हूँ. So you know, if I were to look at your life as a snapshot and if I were to leave everything and if I met you for the first time, what is one thing जो आपको बहुत ज़्यादा stand out करती है कि रिजा, I love my art or I love my, you know, clothing or I love the entire process of creativity. कहाँ से? Where do you get that? As a woman, I have to first say I love my family. Yeah. Oh, okay. That doesn't. You don't have to say it. No, but that is the truth. Yeah, that is. There is nothing closer to your heart. Of course. Than that. They inspire you. And yes, then it's my work. I feel very strongly about my work. I feel very blessed. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की कि मुझे ये काम मिला करने को और मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि ये काम आसान है. अभी हाल में ही मैं काम करी थी अपना and मुझे this thought occurred to me that I am so lucky कि मैंने म्यूजिक लगाया हुआ अपने स्टूडियो में अपनी पसंद की जगह पर हूँ, अपने पसंद का काम कर रही हूँ, म्यूजिक सुन. इसमें भी बहुत मुश्किलें आती हैं. There are days when you are just struggling with a painting and struggling with an idea. और वो बहुत मुश्किल होता है इंसान के लिए. उसके बावजूद मैं ये I am very aware कि जिस किस्म का काम मैं करती हूँ ये अल्लाह ताला की बहुत ब्लेसिंग है कि मेरे पास ये काम. And ये कला है वो that comes from that. So Nazia, if I look at you and if I see कि okay, let's say let me give you a hypothetical scenario. Okay, how do you create art is what I want to understand. Let's say you're having a very melancholic day. अच्छा दिन नहीं गुजारा और let's say आप अपनी अम्मी का ही कोई गाना लगा हुआ है और आप अपने स्टूडियो में बैठी हैं. So how is it कि आप अपने creative process को approach करती हैं? Is it a choice of color that tells you how you're feeling or is it कि यार आज मैं patterns में काम करूँगी या मैं animals में करूँगी या मैं landscapes में करूँगी? What is it for you that stands out? Art is not as whimsical as people think. अच्छा. ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आज मैं गई तो कुछ और बन गया और आज मैं गई तो कुछ और. अच्छा. There is planning, there is thought, there is a concept. और उसको किसी भी चीज़ बनाने के लिए उसकी पहले इतनी प्रेपरेशन होती है कि जब कैनवस आपके सामने आता है आपको पता है आप इस पे क्या करने वाले हैं. अच्छा, of course. जब आपने कैनवस बनवाया ही है उस साइज, क्योंकि मैं अपने कैनवसेस तक खुद बनाती हूँ, उनको प्रिपेयर खुद करती हूँ. अच्छा. उसी दौरान में आपको आइडिया होता है कि आपने क्या करना है. अच्छा, amazing. बट ऑफ कोर्स जिस तरह के आप मूड में है, इट अफेक्ट्स
It कई does. दफ़ा होता है कि if I'm in that kind of a mood तो मैं Yeah. स्टूडियो में जाऊंगी नहीं. अच्छा, you know, you don't create when you're sad. You see, Chuck Close is an artist. Yeah. वो कहते हैं कि inspiration is for amateurs. We just show up for work. So, Makes हम sense. तो बस काम पर आते काम पर हैं और आप बस रोज काम पर आते हैं और आप काम करते हैं और उसमें अच्छा काम भी होता है और बुरा काम भी होता है. और और वो भी अगर subjective आप में है. अकल हो तो आप अच्छा काम रख लेंगे और बुरे काम को इम्प्रूव करेंगे. Improve करें. अदरवाइज द होल प्रोसेस इज एंजॉयबल. Enjoyable. कई दफ़ा मेरे साथ इस तरह भी हो चुका हुआ है कि पेंटिंग के ऊपर आप अरसे से काम कर रहे हो और आखिर में पहुंचे हैं एंड इट्स कंप्लीट. समटाइम्स आई हैव इवन वार्निश्ड अ पेंटिंग एंड इट्स इन फ्रंट ऑफ मी और मैं कहूँगी ये नहीं जा रही. And you take it out. Wow. You just realize that this is not going. Wow. So And to have the courage to be able to do that is important. are you? because, Do you think you're your worst critic? I don't know if I'm my worst critic, but I do see जहाँ पे कमजोरियाँ आती है और मेरी कोशिश होती है कि उनको निकाल दिया जाए निकाल दिया. और या फिर उन पे बिल्ड करके कुछ और बनाया जाए. आई थिंक अगेन वर्क एथिक इज समथिंग जो मुझे अपने वालिदैन से मिला है. बिकॉज अगर आप अपने काम के साथ ईमानदारी नहीं कर सकते तो आप किसी के साथ नहीं कर सकते. सो दैट इज द सॉर्ट ऑफ प्रिंसिपल दैट आई फॉलो. And that's what's been working for you, right? तो अगर ये जो बॉर्डरलैंड है अभी एग्जीबिशन है सोलो जो कि बेसिकली लाइक जस्ट टू लेट यू गाइस नो ट्यूसडे 28 को है 4 से 7 के बीच में कैनवस गैलरी क्लिफ्टन कराची में चल रही है. आखिरी 3 दिन है इसके. आखिरी 3 तो दिन. प्लीज आके जरूर अच्छा तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे नाज़िया? वुड यू टेल द ऑडियंस? सो कैनवस इज अ ब्यूटीफुल गैलरी. अच्छा. उनकी बहुत अच्छी स्पेस है ग्राउंड फ्लोर पे और पूरी स्पेस पे शो लगता है सोलो अच्छा. एग्जीबिशन जब होती है. और मेरे काम के रंग काफ़ी ब्राइट होते हैं और ये पहली मर्तबा होती है कि मैं अपना काम लगा हुआ देखती हूँ जब गैलरी जाता है. Of अदरवाइज course. स्टूडियो में आप देखते हैं स्टूल्स पे पड़ा होता है, दीवारों पे लगा होता Of है. course. बट टू सी अ वर्क अप आई फील लाइक द वर्क टेक्स ओवर अ स्पेस. वो जगह फिर आपकी बन जाती है उन कुछ दिनों के लिए, वो 2 हफ्तों के लिए. Of course. क्योंकि वो जो रंग है. ओके सो म्यूज़िक जो है वो आप पे बहुत असर करता है. मेरे लिए ये नंबर 1 आर्ट फॉर्म है. आपको ज़ुबान आती हो या ना आती हो, जब आप म्यूज़िक सुनेंगे कुछ वो जिस तरह आपके इमोशंस Resonate के ऊपर करता असर करता है, उससे ज़्यादा कोई पावरफुल आर्ट फॉर्म मुझे नहीं I नजर agree आता. with you. Yes. म्यूज़िक के बाद रंग, हाँ. अगर रंग लार्ज स्केल में इस्तेमाल किए जाएं दे इवोक इमोशनल रिस्पॉन्स. आप यू कैन हेल्प इट. यू वेरी ह्यूज लार्ज डोर which is red. आपको असर होगा दरवाजे का. Yeah. So Perhaps danger. perhaps danger, but it makes you feel something. Makes something. Yeah. So अगर आप कलर को एक लैंग्वेज समझ लें, so for me that is what's interesting. जब आप एक जगह में अपने रंग लगा देते हैं तो वो जगह आपकी मेरी हो जाती है. Yeah. और then how I play with it is up to me. So when जब कोई शो होता है आने वाला, you always know where it's going to be seen, तो आपको स्पेस का अंदाजा होता है. अच्छा. तो फिर मैं अपना काम उसके मुताबिक बनाती हूँ, जो which I think will sit well in that gallery. Really? And take over that space. Yeah. Oh wow. So let's say if you didn't have a restriction कि रिजा ये गैलरी नहीं है और अगर कोई और गैलरी है तो would you create more openly? Would you be? It depends. So in Australia, I've shown in this gallery which huge ceilings. Huge ceilings. They Huge look. ceilings, large space. So वहाँ पे फिर installations मैंने लगाना शुरू कर दिया. Because उस scale के ऊपर आप फिर काम कर सकते हैं. Ah, you worked on installations as well. As well, but more in यहाँ पे होगी? Australia than here. Borderland में हो? यहाँ पे मैंने सिर्फ since I've come to Pakistan, मुझे अब 8 साल हो गए यहाँ पर. I'm just doing oil paintings. Painting. Oil paintings. Oil paintings. Why paintings? And what kind of palettes are we going to be expecting? किस तरह के patterns हम expect कर रहे हैं? जो art lovers अभी आपको देख रहे हैं, वो if they want to come and buy a piece, तो उनको किस तरह का stuff मिल सकता है? The colors that I use are very vibrant. Okay, great. जो टेक्निक्स मैं इस्तेमाल करती हूँ वो रेनेसांस पेंटिंग टेक्निक्स है. तो Yes, पुरानी टेक्निक्स को इस्तेमाल करती हूँ जिस वजह से मेरे रंग जो हैं वो बहुत ट्रांसपेरेंट और बहुत ब्राइट होते हैं. अच्छा. So they come out that's the Very first thing. vivid. Yeah. The first thing that you encounter with my work, I think, is color. Color. So I think you're more of a mood lifter sort of a painter, right? You would say that? I don't know. I work with a lot of blues and greens. I don't know if it works with the mood. That's the palette in this show is a little different. अच्छा. It's a lot softer. It's a lot more muted. Muted. और इसके अंदर जो मेरा realistic काम है वो थोड़ा ज़्यादा है. अच्छा. Because I work with abstract and I work with realism. और मैं दोनों enjoy किए हमेशा और मैं हमेशा दोनों को साथ लेके चली हूँ. हर शो में होता है. कोई आके मुझे इस शो में कहता है it looks like the work of 3 different artists. And actually I don't see it. I don't see it because मेरी palette उस सबको
ब्लेंड करती है एंड मे बी देयर ऑल थ्री पार्ट्स ऑफ यू. आपको लगता है कि कभी आपका आपकी हर पर्सनालिटी के एक डिफरेंट हिस्से को टैप इन करता है? Absolutely, that is what it वही is. होता है रजिस्टर. यही होता है. आई थिंक एवरीवन कैन फाइंड समथिंग ओवर देयर, राइट? जिस तरह आप Absolutely. बोल रही हैं कि यू नो कलर्स भी अलग हैं एंड यू नो दे थ्री डिफरेंट, इट सीम्स लाइक थ्री डिफरेंट आर्टिस्ट्स हैव प्रोड्यूस्ड. Well, the thing is, कोई भी आर्टिस्ट काम करता है फॉर कम्युनिकेशन. Of course. इट्स नॉट कि आपको अपनी हर पेंटिंग बेचनी होती है, पर आप जरूर चाहते हैं कि सब आके काम देखें. काम देखे जरूर. आपकी यही लालच होती है इसमें Yes, कि yes. कि लोग आकर काम देखें. तो अगर आप लोग सब आए तो मुझे बहुत खुशी होगी. Of course. आई कम एंड सी द वर्क. वहाँ पे कमेंट बुक पड़ी होती है, अपने कमेंट्स छोड़ें, उनसे मैं भी सीखूंगी कि आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं. Of course, and it's a moment for you. ये ज़्यादा अच्छी बात है. In fact, if people come and check it out, right? Yeah, more जितने than लोग even देखें. more than even buying, it's very important कि लोग आएं और ये appreciate रूह की करें. गज़ा होती है. Yes. म्यूजिक हुआ, आर्ट हुआ, course. किसी भी किस्म का क्रिएटिव आर्ट्स जो है ये आपकी रूह को ताज़ा करता है. Absolutely. Absolutely. अच्छा, हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले आपसे बात मैं कर रही थी कि we are made of stardust, right? How does this cosmic perspective influence your work, given I'm so cosmically inclined myself also? just this idea I find very interesting that we are made कि हम लोग बने हुए हैं all Yeah. little particles that have come from the stars हाँ. and in us. ये मैं in fact ये जो बच्चे देखते रहते हैं इंस्टाग्राम वगैरह इस पे लगे रहते हैं. sometimes the astrophysicist talking and it just caught Yeah. my ear, I should say, Yeah. that the universe gathers within us to observe itself. यानी कि हम इन सारे सितारों से बने हुए हैं Yeah. और हम फिर इन सितारों को देखते हैं. हाँ. तो आपका अंदर का बाहर. और मेरा काम जो है बहुत अरसे से द ट्रजेक्टरी ऑफ माई वर्क, मैं एक किस्म का पर्सपेक्टिव की बात करती हूँ, जाली की बात करती हूँ. जिस तरह से हम देखते हैं, अगर हम अपनी पोजीशन बदलने देखने की तो हमारा नजरिया बदल जाता है. सो दिस रियली फेड इनटू दैट, द इनसाइड एंड आउटसाइड. जिस चीज़ से हम बने हुए हैं और जो चीज़ के हमारे बाहर है, इट्स ऑल द सेम थिंग. It's all the same. And that really fascinates me. And I think that has come into this work where the borders are porous. हमारे अंदर का बाहर का बॉर्डर जो है, ज़रूरी नहीं कि हर बॉर्डर इतना स्ट्रॉन्ग दीवार की तरह हो. बॉर्डर्स कभी दो चीज़ों को जोड़ते भी हैं. तो वो उससे मैं वो नजरिया लेकर चली अपने काम के How अंदर. So that beautiful. sort of appeals to me. How beautiful. And is there any artwork जिसमें actually हम लोगों ने stars and cosmic, have you ever made an artwork like that? I think if you see my work, I use some gold leaf etc. in my work. Wow. There is one large piece that I've done. इसके Yeah, लिए yeah. that's called soundscape. अच्छा. For me, that's like making a symphony with color. अच्छा. Right? So you work with color. So you know, these ideas that are important for me to keep working. मुझे ये बहुत लगता है कि जब एक आर्टिस्ट किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे काम करता है, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि मैं सुबह 8 बजे काम पर खड़ी हूँ और रात के 11 बजे यहाँ से जाऊँ. Yeah. It has to be interesting to me. Yeah. पर जब आप एक दफ़ा काम लगाकर गैलरी में लगा देते हैं, then it belongs to the audience. Of course. अगर आप उसको देखते हैं और आप कुछ महसूस करते हैं तो वो आपके लिए एक कामयाब पीस है. Yes. Otherwise you move to the next piece. Of course. कई दफ़ा मैं लोगों को अपनी पूरी कहानी बताना चाहती भी नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो इस काम में से वो लेकर जाए जो उनको अच्छा लग रहा है, या वो अपनी कहानी इसमें ढूंढें. And कभी ऐसा हुआ है कि लोगों ने आके बताया कि you know, like for instance, there's a beautiful piece that I can see in the video that's been playing, and it's like a blue, you know, painting, and you're wearing a blue saree and standing right next to it as well. Gosh. And this one, and you know, I think it's stunning because something about that is calling to me, जी, right? इस So- तरह की एक फिल्म एक बनी थी हाँ। जिसमें एक बहुत अमीर कपल होता है. अच्छा। और वो अपना ही स्कल्पचर चोरी करके इंश्योरेंस क्लेम करना चाहते हैं. हेनरी मॉ का उनके पास छोटा सा स्कल्पचर अच्छा। है. तो वो किसी होटल में जाके ठहरते हैं, पैसे उनके ख़त्म हो गए. वो कहते हैं अब इसी इंश्योरेंस से हम करेंगे. तो बीवी मियाँ को कहती है, मियाँ बीवी को एनीवे सेटअप कर लेते हैं कि अभी चोरी करना है स्कल्पचर. अच्छा. वो देखते स्कल्पचर चोरी हो जाता है. बीवी समझती है मियाँ ने छुपा के रख दिया. शी सेड आई डोंट वांट टू नो, क्योंकि उसने इंश्योरेंस वालों से बात करनी है. अच्छा। वो जानना भी नहीं चाहती कि स्कल्पचर कहाँ है. हाँ. पता चलता है कि स्कल्पचर सचमुच चोरी हो गया हुआ है, ओह, कि मियाँ ने नहीं छुपाया. नहीं चोरी. ओके. फिर वो सबको ढूंढते हैं और स्टाफ आता है. फाइनली दे फाइंड द स्कल्पचर विद द मेड, ओह. एंड द मेड इज डेफ डम, म्यूट, बोल नहीं सकती. ओह. और वो किसी फॉरेन कंट्री की होती है, और जब वो मिलता है वो रोई जा रही होती है. उसे पूछती है कि तुमने ये क्यों लिया. हाँ. एंड शी राइट्स डाउन, इट स्पोक टू मी. वाह. तो एक बहरा गूंगा इंसान, गगन। उसको लगा कि इस कल्चर ने उससे बात की, उसने वो उठा लिया. Wow. So that is the power of art for me. How beautiful is that? How beautiful is that?
And yeah, so I mean, I'm sure आपको कितना beautiful लगता होगा जब लोग आके आपको बोलते होंगे कि you know this painting speaks to me or these colors speak to me, and you know I'm No, sure it's very these paintings are gonna find. It's very humbling. It's very humbling जब मैं सुनती हूँ कई What's your favorite piece in the gallery right? जिस तरह पूछना कि बच्चा कौन सा आपका favorite? I know it must be really tough for you. When I was asking you, मैं सोच रही थी मुश्किल होगा आपके लिए choose नहीं, करना. but in this particular Some of them. well, large pieces What are more spoke to you? challenging. हाँ. Large pieces are more challenging because वो physically challenging Physically होते हैं. challenging होते हैं. But इस particular show में मैंने काफ़ी बड़ी पेंटिंग बनाई है जो somewhat realistic है. अच्छा. And that was me pushing my work and I think मेरी काफ़ी ज़िंदगी भी उसके अंदर pour in होती है क्योंकि 3 महीने उस पर आप लगातार एक चीज़ के साथ यू स्पेंडिंग टाइम आप रोज़ एक चीज़ के साथ खड़े हुए हैं 3 महीने के लिए तो वो एक आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है. Of course, बनी So जाता. that painting is in this show. So how sad were you when it finished? Or were you happy? Were you relieved? खुश थी आप? No, इसी उसके ऊपर मैंने रोज़ काम किया. जब वो ख़त्म भी हो जाती है तो वो मेरे कमरे में आती है तो मैं उसको कुछ थोड़ा सा कुछ Tweak कर रही होती हो. I can imagine. So for me it doesn't finish. अगर मेरे सामने फिर कोई जब नहीं तक देगा गैलरी तो में नहीं जाएगी. हाँ, that's when you realize कि अच्छा अब ये चली गई. अब इसको हाथ लगाना छोड़. Guys, I really think you should check it out. Last 3 दिन रह गए हैं and you know 11 a.m. to 7 p.m. Definitely go check it out. Maybe some painting will speak to you as well. क्या पता आपको कुछ अच्छा लग जाए.